I'm very happy to inform you that today we have Professor Dr. Avinashji Dadich, who will be sharing his experiences and tell us more about the education opportunities outside India. Avinashji is Dean of Institute of Legal Studies and Research and Director of Strategic Initiatives, GLA University, Mathura. He has done LLB from Delhi University, LLM from France, PhD from United Kingdom, and he is also an IVLP USA fellow. His both degrees from abroad are on full scholarships awarded by respective government and universities. He has a work experience in EY, Deloitte, MCU, Government of India, and Supreme Court. He originally belongs to Araksar village of Nagaur district, Rajasthan. His specializations are market regulations and competition law, AI and emerging technologies, global anti-corruption laws for MNCs, and institution building. So without any further delay, please extend the welcome to Avinash ji. Avinash ji, how are you doing today? Yeah, so far it's good. Very good. Yeah. So I have too many questions to ask, and please allow me to fire them. Please, yeah. Yeah. So my first question to you. Nikhil, before we jump to our questions, first of all, I would like to thanks to Devesh ji, especially such a nice initiative. See, okay, we are all Dadich, I think in this forum, most of us, we are all Dadich. And see, when I moved out first time in my life out of Rajasthan, especially in Delhi University, I was very active. I was the president of Student Union and faculty of law, Delhi University. So very much active in student politics that time. So very interestingly, people used to call me Dadichi, not Dadich. And I told many people, see, it's not Dadichi, it's a Dadich. We are the, but they never understood. They say, no, Dadichi is fine. And then the first time I realized that Dadichi is a very big brand, that wherever you go in this country, if you tell Dadich, then people ask you, okay, are you connected with Maharishi Dadichi? So, just connecting the dots with Maharishi Dadichi and this webinar about the education, I think that's the background. And I think then I would like to take the approval or the permission from Deveji if I can speak more in Hindi, because I believe there may be few people, in our webinar, they feel more comfortable in Hindi. So मैं थोड़ा मिक्स करूंगा, ठीक है देवेश? श्योर सर। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम बात करने जा रहे हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण है आज। सही। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि महर्षि दधीची की वो कहानी जो सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी हड्डियां दान दी, लेकिन उसके पहले की एक कहानी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब वो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती है एज ए प्रोफेसर। वो कहानी है कि महर्षि दधीची का ब्रह्म विद्या के बारे में ज्ञान था। मतलब वही एक ऋषि थे जो ब्रह्म विद्या के बारे में जानते थे। ब्रह्म विद्या थी कि कोई इंसान मर जाए तो उसको वापस जीवन कैसे दिया जाता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी विद्या है। मतलब जो भी विद्याएं है वो आपको जीते जी काम आती है, मरने के बाद कोई विद्या नहीं काम आती। बट मतलब दैट वाज द ओनली स्किल कि भाई कोई मर गया तो जिंदा कैसे करते हैं। तो वो विद्या अगर कोई सीख ले तो फिर तो भाई दुनिया में उससे बड़ा तो कौन है। तो राजा इंद्र इस विद्या को सीखने महर्षि दधीची के आश्रम गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे ऋषि हैं और ये ब्रह्म विद्या आप मुझे सिखाइए, जिससे कि जब हम लड़ाई में जाए तो मैं उसका यूज कर सकूं। महर्षि दधीची ने कहा कि इंद्र, तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा व्यवहार नीच है, सही नहीं है। यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एजुकेशन, तुम अनफिट हो। और अयोग्य इंसान को अगर कोई गलत चीज मिल जाए, मतलब कोई विद्या मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो उससे बड़ा गलत काम नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं, रिफ्यूज करता हूं कि मैं तुम्हें ये विद्या नहीं दूंगा। एक ऋषि एक राजा को मना कर रहा है।
एक राजा जिसका 3 लोकों पे शासन है और एक ऋषि जिसके पास कुछ नहीं है, पर उसने अयोग्य आदमी को मना कर दिया। आगे की कहानी अलग है, पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर कि महर्षि दधीची ने हमें सिखाया शायद उस कहानी के थ्रू कि योग्य इंसान को, जो भी इंसान है योग्य, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और अयोग्य को नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट। तो आज जो हमारा सेमिनार है वो यही है कि जो हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, ये एक शिक्षा का विषय है और हमारे जो दलित समाज में बच्चे हैं, योग्य हैं, अगर उनको सही गाइडेंस, सही सपोर्ट मिले, तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने एक मतलब बैकग्राउंड मैंने थोड़ा-सा मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। सो नाउ निखिल, यू मे प्रोसीड विथ योर क्वेश्चन्स। Thank you, sir. It was indeed a very interesting story which you shared with us. So, in continuation with the webinar, I would like to ask you my first question. Before that, I just want to highlight that this time we are not gonna present in a PowerPoint presentation format. We have changed the pattern, and it's gonna be a discussion between moderator and this speaker for 20 minutes. और उसके बाद फिर हम कुछ टाइम के लिए फ्लोर ऑडियंस के लिए ओपन कर देंगे. So feel free to ask any question which you have, because this webinar is very important for. I personally feel this webinar is very important for all of us. Even if you are not a student, you may be like maybe your child is gonna study in a college in future, or maybe your brothers or sister or any other cousin. So it's definitely important for all of us. So and given that Avinash ji has a very huge experience, so I think we can like take a leverage of it, and just feel free to ask any question which you have. Okay, so my first question, Avinash ji, is given that there are too many opportunities in the education sector in India itself, why do students still choose to study abroad? Is it because of the higher job opportunities in the foreign countries after graduation as compared to India? ओके, तो निखिल जी का सवाल ये है कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, वी हैव गुड स्कूल्स, कॉलेजेस, विदेश क्यों जाना चाहिए? सी बेसिकली निखिल जी हमने डिस्कस किया कि इंस्टेड ऑफ ए पीपीटी वी कैन हैव ए क्यूए सेशन, जो अपने इंडियन फिलोसॉफी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, like just like Gita and Upanishad, there's always QA session, not a lecture but a questions and answer. So निखिल जी का पहला सवाल है कि क्यों जाएं, फॉरेन क्यों जाना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कि हायर एजुकेशन इज ए वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन लाइफ। आप दोबारा बीए, एमए या कोई भी डिग्री नहीं करते हैं, आपका बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि मुझे फॉरेन जाना है या नहीं जाना, या मुझे इंडिया पढ़ना है या फॉरेन पढ़ना है। ठीक है, ये वाई जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 15 years, अभी भी मैं काफी लोगों को काउंसलिंग देता हूँ, एंड रिसेंटली आई कंप्लीटेड वन प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए, ऑन करियर काउंसलिंग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये पूछना है व्हाई, क्योंकि कईयों के पास जवाब नहीं है इसका। जब पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई आप क्यों भेजना चाहते हो बच्चों, अरे साहब बच्चा विदेश जाना चाहता है, अच्छी बात है, पर देयर मस्ट बी सम रीजन ना, देयर मस्ट बी सम रीजन। आप क्यों जाना चाहते हैं? आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, आप इमिग्रेशन वहां सेटल होना चाह रहे हैं? सी, बिकॉज नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव, दे आर स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड विथ ईच अदर। जब आप ये डिसाइड करें कि मुझे फॉरेन भेजना है, तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि मैं क्यों जाना चाहता हूं। आप वहां जाके एजुकेशन लेके वापस इंडिया आना चाहते हैं, आप वहां जाके वहीं सेटल होना चाहते हैं, आप वहां जाके क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा कंट्री चूज करने में, कोर्स चूज करने में, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लेने में, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव अफेयर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइफ। आपने अगर एक कंट्री चूज कर ली और वहां मान लो 4 साल लगा दिए,
एंड आफ्टर 4th ईयर यू रियलाइज करे यार मैंने तो बड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। अभी जैसे कल एक बच्चे का फोन आया कि सर मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दीजिए, मैं लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बड़ा अच्छी चीज है, व्हाई? सर फिर मैं यूएस सेटल होना चाह रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, बच्चा फाइनली यूएस सेटल होना चाह रहा है, लेकिन वो लंदन से मास्टर्स डिग्री कर रहा है। तो यहाँ ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, व्हाई? आप सबसे पहले ये चूज कीजिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि फॉरेन एजुकेशन वाई का जो मेरा आंसर है, सबका अपना अलग अलग आंसर है। यू शुड नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन विद द होप एंड ड्रीम कि भाई हमारी जॉब लग जाएगी। देखिए मैं बड़ा रियलिस्टिक ओपिनियन दे रहा हूं, मैं यहाँ कोई पेड कंसल्टेंट नहीं हूं कि आपको सपने दिखाऊं कि नहीं नहीं आप बस एडमिशन ले लीजिए और वहां ग्रीन कार्ड तैयार है। दुनिया बदल रही है, दुनिया का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है पिछले 8-10 सालों से, और इस कोरोना ने उस जो बदलती हुई गति थी उसको बहुत तेज कर दिया है। अभी डेवलप्ड कंट्रीज में भी काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको लोग नहीं चाहिए, पर नाउ दे आर वेरी सेलेक्टिव, नाउ दे आर वेरी वेरी सेलेक्टिव, ठीक है। आप जब वहां जा रहे हैं तो ये जो वाई का सवाल है ये पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके कई डिसीजंस आगे इफेक्ट होंगे। कोई इंसान 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये सोच रहा है कि मुझे जॉब लग जाएगी वहां पर, फिर उसकी नहीं लगती है, एजुकेशन लोन ले लिया 70 लाख का, 60,000 की ईएमआई बन गई, वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो मेरा मानना है आप फॉरेन एजुकेशन लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। एंड बिलीव मी, इंडिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर आप फॉरेन से अच्छी डिग्री लेके आते हैं या तो आपकी वहां जॉब लग जाए, वेरी गुड। अगर नहीं भी लगे तो डोंट वरी अबाउट इट, इफ यू गॉट ए गुड डिग्री फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूशन, और जो आगे हम सवाल करेंगे वो सब आप अगर फॉलो करते हैं, इवन यू विल हैव ए गुड करियर इन इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वाई पे पहला सवाल आपका होना चाहिए कि वहां सेटल होना है या इंडिया आना है, ठीक है। और मेरा आंसर है कि ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाइए। आपके पैरामीटर्स वो होने चाहिए कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, ये आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, ना कि साहब यूके जाना है। अब जैसे कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब सोरे को यार आप तो अमेरिका भेज दो। मैंने क्यों भेज दे, वो कारण, अरे नहीं यार भेज दो। अविनाश जी आप म्यूट पे चले गए हैं। इट्स हैपन ऑटोमेटिकली, सॉरी। तो ये मेरा बेसिक है कि हायर एजुकेशन के लिए जाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल नेटवर्क, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक योर डिसीजन। सो आप जब भी आगे कोई डिसीजन ले तो प्लीज टॉक टू पीपल एंड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड योर वाई। इज इट ओके निखिल? Yeah, indeed. The answer which you just gave, I think it's very important that one should know why he wants to go outside, because, as you said, like it's very expensive to sustain yourself for quite a few years in a different country. और इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई जाना चाहता है तो एटलीस्ट ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल in order to become successful in further years of his life.